السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آج کے اس پہ حال کا. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور آج ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں معروف فلم ڈائریکٹر جناب ہیرا سپر ہٹ. بہت شکریہ جنید صاحب، بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ کے چینل کو بھی، آپ کو بھی، آپ کی ٹیم کو بھی، کہ آج ہیرا سپر ہٹ اپنی پوری فلم کی ٹیم کے ساتھ آپ کے شو میں آیا. اچھا، یہ آپ کا پورا کرو ہے، زبردست. اور دادا کی خیال ہے نجائز تجاوزدار ٹان والی ٹیم ہے. اچھا، تعارف تو کروا دیں چلیں. جنید صاحب یہ شخص، ہاں ہاں، آپ یقین مانیں گے کہ یہ وہ بندہ ہے سکرین پہ ہلچل مچا دینے والا آدمی ہے کیا؟ یہ ہمارا کوریوگرافر ہے جی، ڈانس ڈائریکٹر. بس بس مٹھو مٹھو بھیجا، زبردست. کول مٹھو ادا نا ہے جی. اچھا جی ہاں، میں کہتا ہوں کہ ایسا ایسا سٹیپ مدھوری کو نہیں نصیب ہوا کبھی، اچھا، جیسا یہ کرواتا ہے. لیکن ابھی تک ان کے کریڈٹ پہ کون سا بڑا کام ہے؟ یہ ہمارے محلے کا سکول ہے، ایک پرائمری سکول، وہاں پہ یہ ٹیبلو کرواتی ہے. آپ یقین مانیں جنید صاحب، ایسے ادھر مجمع کٹھا ہوتا ہے جس دن سکول کا مینا بازار ہو یا فنکشن. ہوئے 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 ہوئے. اچھا، یہ ساتھ کون بیٹھے ہوئے؟ یہ ببر شیر میری فلم کا ویلن ہے. سیٹ کام ہو گیا، بقایا رقم سنگاپور والے بینک میں ٹرانسفر کر دو. او بقایا رقم سے یاد آیا راکی بیٹا، تمہیں 200 روپیہ دے کے بھیجا تھا روٹیاں لینے، بقایا رقم کہاں ہے؟ جی 12 روٹیاں آئی، 80 روپے بچے نے، 50 روپے دے نے جوس پی لیا، 30 روپے دے نے انجیکشن لوا لیا. بیٹا بات سنو، اسی طرح پھر فلم اوور بجٹ ہو جاتی ہے. اچھا، ہیرو کون ہے؟ ظاہر ہے جنید صاحب، راکی کو دیکھ کے آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ ہیرو بھی بڑا ڈیشنگ رکھنا پڑنا تھا، بڑا گبرو جوان چاہیے تھا. ظاہر ہے. اس لیے ہیرو میں نے اس کو کاسٹ کیا. یہ ہیرو ہے؟ کیا بس یہ اور تاڑا کی خیال ہے ملن دے دندہ جو پھیرن والی تیلی ہے. کہاں وہ ویلن، تو یہ کیسے لڑے گا پوری فلم میں؟ جنید صاحب، یہ ڈائریکٹر کا کام ہوتا ہے کس کو لڑوانا ہے اور کس سے لڑوانا ہے. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں تو صحیح، کیسے لڑے گا ان کے ساتھ؟ میری جان، یہ کسون مکی یا جوڈو کراٹے سے نہیں لڑے گا ویلن سے، کالے علم سے لڑے گا. اچھا، زبردست. جی جی، یہ بنگالی ہیرو ہے. اچھا، ان کا تعارف نہیں کروایا؟ یہ چیتا میرا فائٹ انسٹرکٹر ہے جی. اوہ زبردست. تو یہ لیٹ آئے، لیٹ. او بس 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 بس. او زبردست. او بس میرا پتر بس کر آج میں پاسا ہی اڑا دینا. او زبردست زبردست زبردست. او بس چیتے بس کر دے. یار آرام سے بیٹھے، تشریف رکھے پلیز. بیجا چیتے بیجا پتر. ہیرا صاحب ایدہ پتا کرا لو، جدا بندہ اینک پیچھے ساؤں بھی جاندہ جے. او مائی گاڈ، کیا جیکی پکڑا گیا؟ مال تو بچ گیا نا. یہ آپ کی فلم کے ڈائلاگ بول رہے ہیں؟ اور نہیں جی نہیں، یہ دا چھوٹا پائیے جیکی اور لیبرٹی چونک چ مسواکاں بیچ دے. ٹریفک وارڈن جڑے نے وہ سگنل تے کچھ ہے بیچو تے وہ بندہ بھی پھاڑ لیندے نے تے مال بھی پھاڑ لے. یہ ٹریفک وارڈن تو ہمیں بھی اشاروں پہ نہیں کھڑا ہونے دیتے. تسی اشارے کرنے جی شروع کر دیں. بات یہ ہے جنید، اللہ خیر کرے. غصہ نہیں کرنا، 12 بجے تو بعد دورہ پہندا ہے نا. اوئے بڑا سٹیمنا ہے جی اس چیتے دا، 1.5 گھنٹہ مکھی پیچھے دوڑ لیتا ہے. غصہ نہ کرنا، انہوں نے بھوک لگی ہوئے تو ٹیشو کھا بھی جاندہ ہے. مجھے باقی ساری ٹیم آپ کی بہت امپریسو لگ رہی ہے، لیکن یہ ہیرو کی سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے کہ ہیرو کیسے آپ کی کہانی میں فٹ ہوگا. انہیں فٹ ہو جاندہ ہے. تسی میرے کو فلم دا نام پوچھے ہے؟ نہیں. فلم دا نام دے پوچھو نا میری جان.
फिल्म का नाम है जी सुंडी मार मुकाओ। जी हाँ, वो सुंडी का स्प्रे करने वाला जिहड़ा जहाज है ना जी, वो मेरा हीरो उड़ाता है अच्छा और स्प्रे कर रहा है। जबरदस्त। ते जहाज उत्तों जनाब इंजन फेल होने की वजह तो खेतों च डिग्या। अच्छा क्योंकि तुहानू पता है स्प्रे वाला जहाज एडा उच्चा तो होंदा नहीं। हीरो मेरे ने डिगन तो पहले जहाज च छाल मारी है। डुप्लीकेट करेगा मेरा चीता। जदों हीरो ने छाल मारी है ते आके कमाद दे खेतां च डिग्या ते गन्ने नू जफ्फी ला के चमड़ गया। लो जी जिन्हां दे खेत ने उस जिमीदार दा ध्यान पिया है कि गन्ने नाल कौन चमड़े ओने उधरों विलन खोल दिता बस दोवें जने खेत चामने सामने होए ने हीरो ते विलन ते फाइट शुरू हुई है। मैं अभी पूरी स्टोरी आपको सुनाना नहीं चाहता, इसको थोड़ा सा सस्पेंस रखें, इंशाल्लाह आपको मजा आए। अच्छा बाकी तो चले ठीक है। हेरोइन कहाँ है? हीरोइन हमारी जुनैद साहब असल में एक पीसीओ में मुलाजमत करती है। आई क्यों नहीं? वो उसके मालिक ने उसको छुट्टी नहीं दी। उसने कहा कि अगर आज फिर छुट्टी करनी है तो फिर मैं शूटिंग की छुट्टी नहीं दिया करूंगा। इसलिए मैंने कहा नो प्रॉब्लम, हम खुद जाके हैंडल कर लेंगे, आप रहो बच्चे। अच्छा फिल्म साज कौन है आपका? उसी पीसीओ का मालिक जी। उस बच्ची के लिए पहले उसने पीसीओ खोला था, अब उसी बच्ची के लिए फिल्म बना रहा है जी। असल में उसका इश्क ही ना जी हमारी रोजी रोटी का वसीला बने। बस करे, बस। अरे क्या कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? बस जी इन बाबे बेरी वाले को भी राम नहीं आया जी। बस बेटा बैठ जा, बस कर दे। टिश्यू क्यों बार बार निकाल रहा है? बस पैड़ी आदत पड़ी हुई है इसे जी। ये जिस दिन शूटिंग ना हो मोढ़े पे झोला डाल के तो सड़कों पे कागज इकट्ठे करते हैं। बहुत जबरदस्त लाजवाब टीम है आपकी। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अपने प्रोड्यूसर से कहें कि किसी फॉरेन बैंक में अपना अकाउंट खोल लें। इस फिल्म की इनकम आपसे संभाली नहीं जानी, लोकल बैंक के पास की बात नहीं। मैंने कहा है कि फौरन खोल लो अकाउंट। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। यार पाजनैल, ये चंद दिन पहले भी एक खबर आई हुई थी कि पता नहीं कितने 100 किलो मुर्दा मुर्गी जो है वो पकड़ी गई और बेच रहे थे और उसका गोश्त बना के बेचना था। ये काम रुकने को नहीं हो रहा। देखो ना जरा के मुर्दा मुर्गियां, मुर्दा जानवरों का गोश्त परिंदों का खिलाते जा रहे हैं। गरीब आदमी और अब क्या करे, क्या खाए? गरीब की चंगा तगड़ा बंदा भी क्या खाए? और मोनोपोली सी बन गई हुई है ये पोल्ट्री फार्म की, ये मुर्गे के फार्म की जी। तो ये इसमें तो ये जो है वायलेशन जो है और ये गंद बला लोगों को खिलाने से बाजी नहीं आ रहे। अक्सर लोग ऐसे कर रहे हैं। बहुत दुख होता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो पूरी दुनिया का हब होना चाहिए पोल्ट्री एंड लाइफ स्टॉक का, वहां पे एक आम इंसान को, मतलब मैं गरीब आदमी की बात नहीं कर रहा, जो मतवसत तबके का आदमी है उसको भी खाने के लिए गोश्त नहीं मिल रहा। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी? कोई सोचता ही नहीं है। बकरे का वैसे बड़ा महंगा हो गया। अच्छा एक ऑप्शन तुम कह रहे हो, पिछले दिनों ये खबर पड़ी है, उसमें बहरहाल अपने तय पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन वाले भी कोशिशें करते रहते हैं कि इस तासुर का तदारुक किया जाए कि जनाब ये अनहेल्दी है या इस तरह, लेकिन अपने तौर पर मेरा ख्याल सबकी पब्लिक की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की जो पोल्ट्री के बारे में रूमर्स उड़ती हैं उनका अपने तय भी तदारुक किया जाए, एक दूसरे को भी बताया जाए। इसका सेहतमंद होना या ना होना तो लहदा बात है ना। मुर्दा ये तो सीधा सीधा क्राइम है ना। ये तो उस दर्जे से ही निकल जाता है ना, सीधा सीधा क्राइम। ऑप्शन नहीं है फिर। ये मैं एक और खबर का जिक्र करना चाहता हूं। पिछले दिनों जो पंजाब के सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक है नसीम सादक, उन्होंने एक ऑस्ट्रिच के गोश्त की जो मार्केटिंग है लोकल लाहौर में, उसका इफ्तिताह किया। और ये ऑस्ट्रिच की जो फार्मिंग है ना, उसमें सबसे बड़ी रुकावट यही थी कि उसकी लोकल कंजम्पशन नहीं थी, मुकामी खपत नहीं थी। लोगों को पता ही नहीं है कि ऑस्ट्रिच कितनी शानदार चीज है। ऑस्ट्रिच जिंदा मुर्गी, शुतर मुर्गी यार। अच्छा शुतर मुर्ग इतनी जबरदस्त फार्मिंग है, इतनी जबरदस्त फार्मिंग है कि अगर कोई बंदा एक बार ऑस्ट्रिच फार्मिंग शुरू कर लेता है वो फिर पोल्ट्री और डेयरी फार्मिंग को भूल जाता है। अच्छा। ये तो ऐसा मल्टीप्लाई करता है, ऐसा मल्टीप्लाई कर, और इसका
صرف لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے, ایک شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے, اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. پورے امریکہ میں اس کو ہیلدیسٹ ریڈ فوڈ کہا جاتا ہے, اور شتر مرغ کو کہا جاتا ہے کہ یہ انڈے دینے والی گائے ہے. اس میں اس کے گوشت میں وہ سب کچھ پایا جاتا ہے جو گائے کے گوشت میں پایا جاتا ہے, اور گائے کے گوشت میں جو ایک نقصان ہے کہ وہ اس میں کولیسٹرول اور فیٹ زیادہ ہوتا ہے, وہ اس سے پاک ہے. فائدے بڑے, نام مشکل ہے, ذرا کیا بتایا شتر مرغ کو یار, تو دوسرا تمہارے لیے نام مشکل ہے اور ہمارے تھیلے کے لیے اس کا قد مشکل ہے, کیونکہ وہ 8-9 فٹ اونچا ہوتا ہے. یہ میرا ایک دوست ہے سلمان خان, اس نے رکھے ہوئے, میں ایک دن گیا اس کے پاس, یار میں وہ شتر مرغ دیکھنے کے لیے قریب ہوا تو وہ ادھر سے مجھے دیکھ رہا تھا اوپر سے, کدھر ہے. دیکھو نا, اگر آپ ڈیری فارمنگ کر رہے ہیں تو آپ کی گائے یا بھینس نے سال میں ایک بچہ دینا ہے نا, اور ایک جو مادہ شتر مرغ ہے وہ پتہ سال میں کتنے انڈے دیتی ہے؟ 80 سے 100 انڈا. ہاں جی, بلے بلے. اب تم دیکھو اس کی پروفیٹیبلٹی دیکھو کہ اگر 100 انڈے میں سے اگر وہ ظاہر ہے کہ مادہ جو ہے خود تو اتنے زیادہ ہیچ نہیں کر سکتی, سوری معافی سے 100 انڈا ایک ٹائم دیتے ہیں, نہیں پورے سال میں 100 انڈے دیتے ہیں. یہ جو ہیچ خود نہیں کرتی ہے, نہیں ہیچ خود بھی کرتی ہے, اس میں اس کی جو ہیچنگ ریشو ہے وہ کم ہو جاتی ہے, اور اگر آپ وہی انڈے اٹھا کے پاکستان آسٹرچ کمپنی کو دے دیں تو وہ آپ سے 2000 فی انڈا, 2000 روپے فی انڈا خرید لیں گے. اچھا, اور اگر آپ اس کو خود ہیچ کرواتے ہیں تو 2 ماہ کے بعد وہ جو شتر مرغ کا ایک بچہ ہے وہ 15,000 روپے میں فروخت ہوتا ہے. 15,000 روپے میں فروخت ہوتا ہے, اور اگر آپ 15,000 روپے میں خرید لیتے ہیں وہ بچہ اور 10 مہینے تک اس کو پالتے ہیں تو 10 مہینے کے بعد, یعنی جب اس کی عمر 1 سال کو پہنچ جائے گی تو اسی ایک شتر مرغ کی قیمت جو ہے وہ 1.5 لاکھ روپے ہو جائے گی. بلے بلے بلے. نہیں تو 1.5 لاکھ میں بکے گا تو اس پہ ظاہر ہے اس کے خوراک خروک پہ خرچہ بھی تو آئے گا نا. خوراک بھی بہت سستی ہے, بڑا درویش منش قسم کا پرندہ ہے. یہ صرف لوسن, جس کو انگریزی میں الفا کہتے ہیں, جو چارہ عام طور پہ گھوڑے کھاتے ہیں, یہ بڑا سستا سا اگ جاتا ہے ہر جگہ پہ, یہ کھاتا ہے اور ساتھ فیڈ کھاتا ہے, اور اس کا جو 10 مہینے کا خرچہ ہے وہ ہارڈلی 30,000 ہے. 15,000 کا آپ نے بچہ لیا, 30,000 روپے اس کی خوراک کا خرچہ لگا لو, 1.5 لاکھ روپے میں آپ نے بیچنا ہے. اور 1 ایکڑ اگر آپ کے پاس جگہ ہے نا, 8 کنال جگہ ہے, تو آپ اس فارمنگ کا آغاز کر سکتے ہیں 50 شتر مرغ رکھ کے. 50 شتر مرغ آپ 2 مہینے 3 مہینے کے رکھ لو, 10 مہینے کے بعد بیچ دو, بچے انڈے الگ اور گوشت الگ. اور اس کی ایکسپورٹ بڑی شاندار ہے دنیا میں. اس وقت جو پیداوار ہے نا آسٹرچ کے گوشت کی, وہ ہے کم و بیش 20-25 ہزار ٹن, اور اس کی ڈیمانڈ ہے 50-55 ہزار ٹن. یعنی ابھی ہم آدھی ڈیمانڈ بھی اس کی میٹ نہیں کر پا رہے, پوری دنیا میں اس کی ڈیمانڈ موجود ہے. وارے واہ. تو یہ تو ماشاءاللہ جتنا اس کا قد ہوتا ہے, اس کو پال پوس کے آپ ٹکٹ لے دیں تو یہ خود بھی باہر جا سکتے نہیں, اصل بات تو میں نے بتائی نہیں, اس کی ہر چیز بکتی ہے. جیسے کہتے ہیں نا پولٹری کی ہر چیز بکتی ہے, اس کی بھی. اس کی کھال کے بیگز بنتے ہیں, اس کے چمڑے کے بڑی شاندار استعمال ہوتا ہے. پھر اس کی چربی جو ہے نا وہ فارماسیوٹیکل کمپنیز خریدتی ہیں, جو عام طور پہ اینٹی ایجنگ کریمز میں استعمال ہوتی ہے, مسکولر پین کی جو دوائیاں ہوتی ہیں ان میں استعمال ہوتی ہے, اور چربی بہت مہنگے داموں بکتی ہے. اور جو اس کے پر بکتے ہیں نا, ایک بڑی ہی خوبصورت بات یہ ہے کہ شتر مرغ کے پروں کے ساتھ حرمین شریفین کی صفائی کا کام بھی ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اور اس کی جو میں کھال بتا رہا ہوں, ایک شتر مرغ کی کھال کی قیمت 10 سے 16,000 روپے ہے. اچھا, تو یہ کھال جماعت اسلامی کو بھی دی جا سکتی ہے. پرابلم صرف اتنا ہے, پتہ چلے جی 100 کھالیں پڑی تھی, 50 اڑ گئی ہیں. تو اس کے گوشت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا گوشت شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہوتا ہے. بالکل. چلو کرتے ہیں کاروبار. پہلے شتر مرغ کو پالتے ہیں, پھر ٹھیک ہے, اتنا جب ہوگا تم پھر پالنا, پھر ذرا بڑا ہو جائے گا پھر مجھے دے دینا, پھر جب اور بڑا ہو جائے گا پھر عزیزی کو دے دیں گے. جب عزیزی سے اونچا ہو جائے گا تو پھر میں قدر عالم چننا نہ لگتا. پھر نہ یار, تھیلے آپ یہ رسک نہ لو, پتہ چلے جی ہمارا تھیلا آسٹرچ کے انڈے کے نیچے آگے زخمی ہو گیا. مجھے ڈر ہے کہ شتر مرغ غصے میں آ گیا تو اس کو ٹھوڈے نہ مارے کہیں.
अच्छा, अगर आम तौर पे जब हम पोटेंशियल्स ऑफ पाकिस्तान डिस्कस करते हैं तो हमारे व्यूअर्स पूछते हैं कि जी इसके लिए इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है, तो अगर हमारे व्यूअर्स में से कोई जो है वो ऑस्ट्रिच फार्मिंग में इंटरेस्टेड है तो उसको पाकिस्तान ऑस्ट्रिच कंपनी से राब्ता करना चाहिए। आपको आसानी से उनके नेट पे राब्ते के नंबर मिल जाएंगे। वो पूरी तरह गाइड भी करते हैं, इस बात की भी जिम्मेदारी लेते हैं कि जो भी मुआवनत दरकार है वो भी देते हैं और आपसे बच्चे और अंडे भी खरीद लेते हैं फिक्स रेट पे। ये खर्चा कितना आएगा सर? आप लगा लो कि 50 को आप मल्टीप्लाई कर लो, दीगर अखराजात शामिल कर लो। यार लेकिन छड़ दे मतलब वही है। एक कुकड़ तो कितना को खा लेंगे 10। ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਥੈਲੇ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਪਵਾ ਦੇਣੇ। कैसे छोटा कर, उसकी टांगे काट के उसको ईंटों पे खड़ा कर दें, क्या करें? यार फार्म को छोड़ो, मुझे नगद पकड़ा। माशाल्लाह 3 को फोटो होती है उसकी। और मैंने सुना है कि गर्दन इसकी अगर खुश्क कर लेना तो शरदाई घोटने के काम। एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आम आदमी के मसाइल पर आम आदमी की जबान में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आम आदमी हमारा फीका। आम आदमी का मसाला, आम आदमी की बात, आम आदमी का आम आम आम, ये तो 3 किलो आम हो गए। बात को छोड़ इसने इनको बताओ, इसने लड़ाई शुरू की। और यार क्या स्यापा डाला हुआ, सीधे तरीके से बताओ। और जी इसके साथ लड़ाई होगी जी हमारी। क्यों? ये इसलिए पहले हम लोग खेलने शुरू हुए ना क्रिकेट, तो कहते हैं कि 6-6 ओवर का मैच पड़िया है, तो कहते हैं कि पहले हम खेलेंगे फिर तुम लोग खेलना। जब 6 ओवर हम कर के पेद के तो थक गए, तो हमने कहा तू वाड़ी दियो, तो कहते हैं कि मैं कार चलिया। फिर छाने ने इसको पकड़िया, तो पहले मुक्का भी इसने मारिया, तो फिर लड़ाई शुरू हो गई है। इसका मामू थानेदार है, हाँ, इसलिए ये करता है। नहीं तो थाने तक बात पहुंच गई, इतनी सीरियस लड़ाई हुई? हाँ, इसने पिस्तौल इसने निकाली थी। पिस्तौल निकाली? इसके एक दोस्त के पास थी, इसने उससे छीन लिया। पहले तो पिस्तौल ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਛਪੀ ਹੁੰਦੀ। देखो ना जरा सेहत भी तो माशाल्लाह बनी है ना। फिर इसने तो गोली चला दी थी, इससे वो दबाया नहीं जा रहा था। अच्छा, हाँ, अच्छा। इतनी देर ਨੂੰ फिर छाले ने डाई मार के खोई है पिस्तौल। कौन डाई? वो डाई मार के खाल नहीं टप सकता, उन्हें डाई मार के तो पिस्तौल। मैं कह रहा डाई वाला साहब है लो। आराम से बात वैसे डाई वाला तो करते नहीं इसका। सर जी एडी को खास गल नहीं, ओवर च 4 गेंदां हले बाकी पईयां सी। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਛਾਨਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁਵਾੜੀ ਆਊਟ ਕਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੰਦ ਦੁੰਦ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਚ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਖੂਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਨੀਲ ਪਾ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਖੂਨ ਦੀ ਬੋਤਲ? ਇਹਨੂੰ ਸਾੜੇ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜੋ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਛਾਪੜੀ ਚ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ 2 ਚਮਚੀਆਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਲੜਾਈ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਫੀਕੇ, ਲੜਾਈ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। प्रॉब्लम यही है, हमारी गली मोहल्ले में जो लड़ाइयाँ होती हैं वो इसी तरह शुरू होती हैं, मामूली सी बात पे, फिर बढ़ते बढ़ते पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाती है। हाँ यार, मामूली यार। ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੜਨਾ, ਇੱਥੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਓਏ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ। मेरे होते तू ना आके जा। ਸੁੰਡੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਪੜਿੰਦਾ। ਭਲਵਾਨ ਬਾਬਾ ਜਾ ਬਸ। ਐ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੌਸਮ ਬਹੁ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੇਖ ਲੋ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਜਾਮਾ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਫੜਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਤੇ ਕਾਢਣਾ ਵਾੜੀ ਲੈਣਾ। इसका मॉडलिंग का स्टाइल है। ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ 'ਚ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਬਾਊ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਊ ਜੀ। पहले मुअज़्ज़ज़, आप बहू जी, आपको तो लड़ाई बड़ी रास आई है। ਲੜੋ ਲੜੋ ਲੜੋ।
धंधा पाना मैं तुम्हें बता दूं। हाँ तू चल आराम से बात कर, मैं तुम्हें बता दूं क्या क्या सुन फेर वाले तेरी लाइव रिश्ती होएगी। क्या बदतमीजी है यार? ठीक है ना पकड़े ना मुझे तो तेरी जान निकाल कौन होए? ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਕੇ ਰੱਖ देंगे। मैं पकड़ रहा, मैं बैठ गया हूँ। अब मेरी बात सुनो ओ छाने, ये जो छोटी छोटी बातों पे होने वाली लड़ाइयाँ होती है ना, बहुत सीरियस हो जाती हैं। बस करो यार। आगे मेरा मफरल गुम हो गया है। अशेड़ के बनिया आया बाजी देखे आपके स्टूडियो में नहीं मुड़ रहे। तो तुम बड़े बोल रहे हो। अच्छा गाना तो लड़ाई हुई है। हाँ तूने उर्दू च कटिया कर फेंको नहीं समझ आती। कोई मामूली सी बात से लड़ाई शुरू हुई है, थाने कचहरी तक पहुंच गई है। आप दोनों की तरफ से बुजुर्गों ने मुदाखलत नहीं की, उन्होंने आपको कुछ नहीं समझाया। इसके बुजुर्गों ने मारा मारा ये ज्यादती है ना, यहाँ से गड़बड़ शुरू होती है। इसलिए कहता मेरा मामा थानेदार है। और यार कौन सा तुम्हारा मामा पुलिस में है? बाबू का रोक जमा रहे हो। जमा के हो रही है। इसका पता कौन सा मामा पुलिस में? कौन सा? वो जिसने पिछले दिनों वीडियो पे शहबाज शरीफ को नहीं बुरा भला कहा, जो अंदर हो गया था, वो है इसका मामा लगता है मुझे। हाथ हो गई यार तुम्हारे वाले। हो गया है। मेरा चाचू कहता था कि मैं भी आ रहा हूँ। कौन? मेरा चाचू भी आ रहा है। बस ठीक है, लग पता जाता है। और क्या लग पता जाता है? एक मिनट एडा तो पलवान। ओहो और ना यार अगे तू मारे ना तू बंदे बुला बदमाश में लजवे सुड़ में दी पूछल होती। यार बस करो, तुम भी बात बढ़ा रहे हो यार। बात नहीं बढ़ा रहा, मैं जुगत बढ़ा रहा। बस करो यार, अब बस करो यार। तुम क्या कह रहे हो? पाए एक मिनट। जिंदा छेड़ेगा, जिंदा डर छेड़ेगा। आहो राणे आसफ हुरन लैके ना ते आया आ जाओ, क्या मैं डिगल लगावा? मैनू चौक के ले जाओ। इंटरव्यू मुकना ते इन्हां नूं अज फैंटी लानी। लो जी गल बद गई बाबू जी ये कल तक आपने इंटरव्यू मुकाना नहीं। उसकी बदमाशी तो खत्म हो गई सारी। डाड़ो ने भी जद मारिया सी। सारे ने तेन मारिया तो फिर अलामा कादा रौला कादा। इनो कई बंदियों ने मारिया मैनू। अच्छा हाँ तो तुम यही काम करते हो भाई, जितनी मर्जी लड़ाई हो जाए आखिर में सुलह होनी होती है। चलो सुलह करो। और ये हमने सुलह नहीं करनी, मैं बता दूं। चलो ठीक है बाबू जी, किसी दी मननी पै जांदी कर लो गल। ओए ऐसे कर दे सुला ठुंगे मारने वाले बदमाश ना। यार फिर वही ना बात। करो। वो कह रहे सुलह नहीं करनी, मैं थोड़ी जी और पैंटी खानी है। खैर यार एक मिनट जरा। हम क्यों करें सुला, ये करे। हाँ कहीं सुला हो गई है। चलो यार तुम हाँ यार तुम कर लो। चलो यार मांगो माफी, तानू माफ करा मैं। लो अब माफिया मांग रहा है ना, पहले कहता जी मेरा मामा ही आएगा। और नहीं हमने सुलह नहीं करनी बस। देखा जी ਇਹ ਗੱਲ ਵਧਾਣ ਡਿਆ ਜੀ। बिल्कुल। ਹਾਲੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਧਰ ਆ। हमने एक शर्त पे सुलह करनी है। ਦੱਸੋ ਜੀ। किलो मिठाई मंगाओ फिर। शाबाश, 1 किलो मिठाई। तो जेड़ा सुलह कढ़ाता है फिर वो मिठाई भी तो मंगाता ही है। हेलो ओ फड़ो लड़ो भी ओ फड़ दो मार टक्कर में जा खबरदार तुम्हें बता दूं। ओए इतना मैंने लड़ना नहीं आता। तू अपने मामे नु क्यों लिया है? फिर मैं कोई अपने मामे नु लिया है। बस करो यार, बस करो खुदा के नाम। बदमाश में लजवे देसी बकरी की पूछा लूंगी। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन अवामी मसाइल को अवाम की नजर से देखने के लिए आइए आपको लिए चलते हैं एक अवामी बैठक में। ताया क्या बनेगा मुल्क का? ये मुल्क वाला मसला और है। ये जो डिस्कस करना चाह रहा है बच्चा, ये तो कह रहा है कि महंगाई बहुत हो गई है। देखो महंगाई जो है वो हर दौर में बढ़ती है, मगर हाथ से जब निकल जाए तो फिर लोग चीखना शुरू हो जाते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम छोटे छोटे थे तो 6 आने का 1 सेर गोश्त आता था। उस वक्त हमारे बुजुर्ग कहते थे कि बहुत महंगाई हो गई है। 6 आने पे भी हाँ जी। फिर जब 10 रुपए का गोश्त हो गया 1 सेर, तो फिर लोग यही कह रहे थे महंगाई बहुत हो गई। फिर 200 का हो गया, फिर यही कह रहे थे महंगाई बहुत हो गई।
अब कितने का आजकल? मैं तो अब बोटी खा नहीं सकता। अब 1000 रुपए किलो हो गया गोश्त। लो 1000 रुपए का कितना हो गया जी? किलो 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 गोश्त हो गया जी। एक बाबूजी जनाब वालेकुम जनाब। खैरियत है हजूर? अल्लाह का शुक्र। क्या मसला ज़ेर बहस है? और बच्चे कह रही है कि महंगाई बहुत हो गई है। मैंने कहा भाई ये तो बचपन से ही सुनते आ रहे हैं महंगाई बहुत हो गई है, तो बता रहे हैं चाचा अब तो हाथ से काम निकल गया है। नहीं बाबा जी, हर दौर में महंगाई जांचने के मुख्तलिफ मयार होते हैं। उन मयारात को अगर सामने रखा जाए तो आज के दौर में पिछले 5-10 साल के दौरान महंगाई अपने अरूज पे है। अल्लाह आपके खैर करे। हर चीज को आग लगी है। ये देखो डॉक्टर को भी आग लगी। हाँ जी, डॉक्टर को जो आग लगी थी वो बुझ गई हुई है जी, इसको भी लगी हुई है। तो बाबे ने तो आग लगनी नहीं क्योंकि देसी घ्यो खाते हुए ने। बाबा जी, आप की तरह का एक बुजुर्ग अपने पोते को कह रहा होता है कि हमारे वक्त अच्छे थे, हम जब छोटे छोटे थे तुम्हारी उम्र के, हम दुकान पे जाते थे 1 रुपए की 6-7 चीजें ले आया करते थे। तो पोता आगे से कहता है कि उस वक्त सीसी कैमरे नहीं ना लगे होते थे दादाजी। नहीं बेटे, ये तो हमें एक मजाक लोग करते हैं ना। वाकई ऐसे था कि 1 रुपए की बहुत सी चीजें आ जाती थी, बल्कि 1 रुपया जो है वो 2-3 दिन नहीं खत्म होता था। बात ये है कि महंगाई उस वक्त महसूस होती है जब तक आप आमदन उतनी ना बढ़ाएं लोगों की जितनी आप महंगाई बढ़ा रहे हैं। वाह बाबा जी अभी वाह। अभी लोगों के पास आमदन के जराए इतने नहीं है, तनख्वाहों में इतना इजाफा नहीं हुआ जितना महंगाई में या चीजों की कीमत में इजाफा हो गया। आपका क्या मसला है डॉक्टर साहब? मेरा जी इनका मसला ये है जी कि खोला इन्होंने क्लिनिक है और लोग आके सामने कपड़े फेंक के कहते हैं जी इसे जरा अच्छी तरह प्रेस मार दे। जब ये बताते हैं कि भाई साहब मैं डॉक्टर हूँ, तो वो आगे से कहते हैं कि जनाब ये मेज आपने इस्त्री करने वाला रखा हुआ। मुझे आप बता दिया करें कि मैं डॉक्टर हूँ। बताया जी, मैंने बताया। एक आदमी को बोला, मैंने कहा मैं डॉक्टर हूँ, कहना जा कम कर जाके। वो जब कह रहा है कि जा कम कर जाके, तो आप कहीं और जाके काम करें। उसे ही कह रही है को है काम तो बताएं, मैं घर भी आ जाता हूँ। देखो भाई, मैं आपको एक आसान सी बात बताता हूँ। महंगाई भी हुई है, आमदन कम हुई है, उस तनासुब के साथ आमदन नहीं बढ़ सकी। मगर हमारे दौर में लोग इतनी जरूरियात भी नहीं बढ़ा के बैठे हुए थे। खाना पीना भी मुनासिब होता था, सादा जिंदगी गुजारते। क्या हुआ बाबा जी? बाबा जी क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, बात कर रहा हूँ। अच्छा, बात पे जोर दे रहे थे। ऐसा ही था, ऐसा देखिए, ये जो है ना लोगों की जरूरियात कम थी, कम खाते पीते थे लोग और उसी में खुश होते थे। बाबा जी साडे ताए चाचे ते 4-4 5-5 रोटियां बह के खा जांदे सी। मेरे को तो एक भी नहीं जे खादी जाती। बेटे ये महंगाई का कसूर नहीं, तुम किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। हाँ, मुझे दिखाओ मुझे। नहीं नहीं, 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 तुम तो खुद किसी को दिखाने वाले हुए हो। मैं कह रहा हूँ कि किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। बाबा जान जी जी, 15,000 रुपया मेरी तनख्वाह है, माशाल्लाह। 5,000 रुपया घर दा किराया, 2,500 रुपया बिल, 1,500 रुपये बच्चियां दी फीस, बाकी 6,000 च मैं 6 बच्चे किस तरह पाला? यानी तनख्वाह 15,000 रुपया और बच्चे 6। यानी कि ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 15,000 ਜੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਬੱਚੇ भी 15 होने चाहिए। बेटा 15 तो तुम पे मक्खियां बैठे तो तुम नजर आना बंद हो जाओगे। कहने का मतलब ये है कि अपने दायरे के अंदर रहो। अगर आप 5,000 रुपया किराया बता रहे हो और 2,500 बिल बता रहे हो, 1,500 फीस बता रहे हो, 200-300 का खुद भी बाजरा खाते होगे। भाई जितना रुमाल है उतने पाँव फैलाओ। हाँ, ये सारी बात है। चादर तो है ही नहीं, रुमाल है ना, तो उतने बस पाँव, बल्कि पाँव फैलाओ ही ना, उतनी उंगलियां हिलाओ बस। अमीर आदमी को देख देख के बेचारा मरे जा रहा है गरीब आदमी। बिल्कुल इस तरह अमीर को देख रहे होते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, कोई बंदा बेचारा केला खा रहा है, तो पास खड़ा है गरीब आदमी, उस केले के साथ साथ वो छिलका उतार रहा है, उसके साथ साथ हिल रहा है। बंदा खुदा छोड़ दे उसको, अभी वो छिलका फेंकेगा तो तू भी नाली में छलांग लगा देगा।
यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। यार जुनैद, हम अपने दोस्तों में बैठ के या अपने ऑफिसेज में या अपने काम की जगह पे, अपनी फैक्ट्रियों में, अपनी दुकानों में, अपने मुलाजमीन, अपने वर्कर्स, अपने दोस्त अहबाब के साथ अक्सर मोहब्बत का इजहार करते रहते हैं और दोस्तों को भी ये रियलाइज कराना चाह रहे होते हैं कि मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, सही। या कि आई एम योर फास्ट फ्रेंड। तो मोहल्ले में भी ऐसे ही होता है। ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਹੱਲੇਦਾਰੋਂ को ਲੰਘਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਹੋਏ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਸਾਇਆ ਦਾ ਬੜਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਆਰਡਰ ਲਾਇਆ ਕਰੋ जनाब। मोबाइल पे भी यही कुछ होता है यार मोबाइल पे तो हम एक दूसरे को दवाइयों के नुस्खे भी बता रहे होते हैं। हार्ट की तकलीफ है तो ये मिक्स करके मजून बना के खा ले। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो मोहब्बत का इजहार करना है, जैसे वालिदैन के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ, बच्चों के साथ करते हैं, इस तरह हमारे माशरे में पता नहीं क्या ये इसको हम इखलाकियात का या हया का हिस्सा समझते हैं कि बीवी के साथ मोहब्बत का इजहार नहीं करते। हाँ, किसी के सामने तो बिल्कुल नहीं करना है कि मैं अपनी बीवी को रिस्पेक्ट करता हूँ, अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ। इसको हम शायद ये समझते हैं कि शायद ये कोई शर्मिंदगी की बात है, ये बीवी के नीचे लगा हुआ है। बताइए ये जो एक फिक्रा निकला हुआ है ना जी, बीवी के थल्ले लगा है, ये बड़ी बदतमीजी है, मैं समझता हूँ। मैं इस फिक्रे को पाकिस्तान की लैंग्वेज में से हज़फ कराना चाहता हूँ ताकि खुल के हमारा एंकर कह सके। या चलो साथ बाकी आर्टिस्ट भी कह लें। नहीं यार, मैं तो बरमला इजहार करता हूँ कि बीवियां जो हैं वो घरों में ज़हनी सुकून का बायस बनती। जी जी जी, और इसके लिए बीवी ऐसी मुजर्रब होती है कि एक कोई जुत्ती जहन पे मारे तो वो सुन्न हो जाता है, बातें बनी हुई इसी फिर तरह। जहन में सुकून हो जाता है। एक मुलाकाती जाता है और कहता है कि बेल देता है मलिक साहब के घर, तो वो मुलाजिम कहता है कि जी वो मलिक साहब तो गए हुए हैं जी, मरी सैर करने गए हुए। कहता हाँ, पिछले दिनों वो बहुत परेशान थे, ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए गए होंगे मरी। कहता नहीं जी, बेगम साहब साथ गई हैं। सर जरूरी तो नहीं कि मोहब्बत का इजहार जुबान से किया जाए, अपने रवैये से भी तो किया जा सकता है। हाँ, रवैये से तो बहरहाल लाजिम है, लेकिन जबान से भी करना चाहिए। उसमें हम कंजूसी का मुजाहरा क्यों करते हैं? जी सर, मर्द की मर्दानगी है कि वो बीवी को प्यार और इज्जत दे। वो खाली तनखा दे के फारग हो जाए। अब बंदा अपनी फैमिली की तारीफें कर लेता है, भरा दा मुंह भावे जड़ा वाले गोंगलू वर्गा होवे, उसकी हमें तारीफें करती रहती है और बीवी की तारीफ करते हुए मौत पड़ रही होती है। नहीं, वैसे ऑन द सीरियस नोट ये वैसे होना चाहिए। बेगम जो है उसको हम मरते दम तक फॉर ग्रांटेड ही लेते हैं, हालांकि किसी और की ही बेटी बहन समझ रहे होते हैं, अपने घर की फर्द नहीं समझ। और हमें ये तो उधरों आई है। इस हवाले से मोहसिन इंसानियत का कौल याद रखना चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा था कि आपको दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज कौन है? रसूल पाक का इरशाद था आयशा। कि मर्दों में कौन पसंद है? कहा आयशा का बाप। दूसरे की जान नहीं तक आहा मार के मारे हर पुराने जो कदली है इस मुद्दे खत सब मैसेज इंडियन इंडिया दिया और ऊपर से कह रहा है मैं नवा हिंदुस्तान बनाऊंगा। यार तेरा दिल कर रहा है तो नवी आंख बनवा ले, नवा बीड़ बनवा ले, और जो तेरी उम्र है नवी खुंडी बनवा ले, तो नवा हिंदुस्तान बनाने डर पे पुराना आ रहे हिंदुस्तान। सऊदी अरब जाने करने वाला निजाम मोबाइल में तब ज्यादा सऊदी
तेरा बड़ा अगर को मेरा नंबर तबाह हो जाए, उन्होंने कुछ भाई ये सुंदर चोरी हो जी अब पे बेच के पास सेकंड सुने कि उमर उनकी मुंतवान बना की मां होते खून लग कोट रहे हो खून दिया लड़कियों फिर चौकी पाई जी खून गलत लग गया, इस गल बाबा इतने आकर दादा जी को नू कह रही हो कि जाके जरा सब्जी ले आ दियो क्योंकि अपने खामद को मंगा लिया कुड़िए मैं नरगस का ड्रामा वेखन चले। बहरहाल खून का असर तो होता है ना, इसी तरह एक अमीर आदमी को खून की जरूरत पड़ती है तो उसका एक शेख मुलाजिम उसको अपने मालिक को खून देता है, मालिक बड़ा खुश होता है, उसको गाड़ी इनाम दे देता है खून देने पे। कुछ अरसे बाद उसी अमीर आदमी को दोबारा खून की जरूरत पड़ती है तो वो शेख साहब अपने बेटे को कहते हैं इस दफा तुम खून दो तुम्हें भी गाड़ी मिलेगी। वो खून देता है, शेख साहब कुछ भी नहीं देते, जूस का एक डब्बा दे देते तो वो मुलाजिम कहता है शेख साहब आपने मुझे तो गाड़ी दी थी, मेरे बेटे को जूस का डब्बा। कहते अब मेरे अंदर शेख का खून है। अगली क्या खबर है जी सुने, बड़े सगीर की मारूफ डिश सीख कबाब चीन में तेजी से मकबूल हो रही है। यहाँ के सूबे सिंकियोंग में फरोख्त अरूज पर है। वाह 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 वाह, जहाँ जहाँ पे सीख कबाब खाया जाता है ना वहाँ पे बड़े अक्लमंद और सियाने लोग रहते हैं, पलवान दरवेश रहते हैं। ये गुजरात देख लो, ये देखना तुम सियान क्यों में भी कुछ अरसे के बाद लोग पहलवान भी हो जाएंगे और दरवेश भी हो जाएंगे और बड़े नामवर लोग यहाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगे। और ये भी देख लेना कि तुम इस शहर के अंदर ना जी चंद सालों में ये सीख कबाब खाते रहे अगर तो इनके नाक फीने की बजाय खूबसूरत हो जाए। सर मैं इतने शौक से कबाब खाता हूँ, मेरा नाक तो ठीक नहीं बेटा तुम लंबे कबाब खाओ ना, तुम गोला कबाब खाते हो। और दूसरी बात यह कि किसी दिन पल्ले से खाओ ना। ये भी जरूर, पल्ले से खाओगे तो फिर और फीने हो जाओगे, बंदा और सोची पड़ जाता है इधर उंगली रख। सर आप पहला तो तुम बता रहे थे जीजी कि चाइनीज भी दरवेश हो जाएंगे तो अच्छे लगेंगे इतने इतने दरवेश। ये क्या बात हुई, उन्होंने दरवेशी करनी है या बास्केटबॉल खेलना है। ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते।